Hello guys, all of you welcome once again in a class of English where we will learn an effective article writing. So earlier also I told you what is article, what is the purpose of article writing. So here also you will learn some of the points which will help you to write a good article. So first of all, article. So article is an expression of our thought about an issue or the subject that is given to us. In this way, in an article writing, we have to present the current issue, the given situation in a very logical, in a coherent way. Okay, and so that we can frame meaningful paragraphs to make others understand what we want to do in that particular situation. So here I am just going to make you understand some of the points that you have to keep in mind while writing article. So first of all, you have to be ready with a catchy title. It means the title is the first impression that you can have on the audience. So while writing the article or while writing any writing section, you have to give the proper heading. So first of all, for the heading you should not go for the whole sentence, but you should write almost, it means 3 to 4 words or maximum 5 to 7 words you can write for the heading. Otherwise 3 to 4 words are enough for that. Okay, next thing, begin with the striking opening sentence which addresses the reader and gets them interested in the topic. It means while you are starting your body of the article, you have to present some strong views so that the reader or the viewer can at once have the attention what you are going to write in that article writing. To make your writing interesting, you have to give it a striking opening. It means कोई भी एक जोरदार प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं आर्टिकल को प्रेजेंट करने के लिए. ओके, सो थर्ड पॉइंट में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फॉर योर आइडियाज, स्पॉटिंग इट विद एविडेंस और एलाबोरेशन. बिल्कुल सही बात है. व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, first of all you have to be the strong enough, because first impression is the last impression. You have to give the matlab ideas which can very strongly present you. So in this way, to make our argument much and more stronger, we can give some evidence or we can elaborate the topic, elaborate the situation which has been given to us. Next, what we can do to to show the coherence between the sentence, okay, between the words, we can use some of the connectors, some of the linking devices like however, therefore, although, even though, in order to. So in this way, to link the previous one and the one that is coming, we can use some of the linker words. Okay, जैसे कि however, therefore, although, even though, in order to, क्या करते हैं हम लिंक करने के लिए, एक आइडिया को दूसरे आइडिया से रिलेट करने के लिए हम इन लिंकर्स का यूज़ कर सकते हैं. Introduce a new point at the beginning of each paragraph that follows to strengthen your ideas. बिल्कुल सही बात है. While you are taking a new paragraph, you have to present a new idea. Don't try to drag the matter so much on only one point. You have to present next point in every coming paragraph. Okay, don't try to just repeat the ideas. So in next point, develop your ideas as much as you can make them interesting and substantial. It means that you have to present the ideas so that the reader feel interested, reader feel enthusiastic about your topic. And substantial means आपको कुछ ऐसे ठोस सबूत देने होंगे so that they means the checker, the viewer have the belief that you have well prepared about your topic. So at last, conclude with your strongest point. Of course, yes, just as the beginning must be good, in the same way ending must be good or the strong. So you have to end your topic, you have to conclude your topic with some of the strong points. Use passive voice, of course. In the conclusion we have to use the passive voice, like it is advised to you, ठीक है, I want sorry, it is advised to you, like, या फिर you are remembered, okay, you are
urged to do that. In this way we can use the passive voice, some humor, it means don't be so serious in your tone. In a somewhat light way you can conclude your topic. Emotive language we have to use. Rhetorical questions to provide a specific effect, it means the questions that doesn't mean for taking the answer. रेटोरिकल क्वेश्चन वो डिवाइस होती है, ये पोएट्री में भी यूज़ होती है ऑफ कोर्स, जिसका मतलब सुनने वाले से आंसर पाना नहीं होता, बस वो क्वेश्चन के वे से ही किए जाते हैं। जैसे कि क्या आप ये सब नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स हम उनका जवाब हाँ या ना में नहीं सुनना चाहते, सिर्फ हम उनको एनकरेज करने के लिए ये सब बोलना चाहते हैं कि क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ नहीं लगाएंगे इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं जो कि एनकरेज करते हैं हमारी ऑडियंस को, उनके अटेंशन को ड्रैग करते हैं हमारी तरफ। स्प्लिट अप ऑफ मार्क्स, यानी कि मार्क्स के हिसाब से ही हमने अपना सारा ये लिखना होता है। मार्क्स का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या क्या करना है। जो हमारा फॉर्मेट है वो 1 नंबर का होता है, कंटेंट इज ऑफ 4 मार्क्स एंड नेक्स्ट इज expression, that is of 5 marks. So you have to be careful while writing about the content and the expression. It means grammatical accuracies, ठीक है, relativity and the expressions you have to be careful while writing all those things. So in this way in your question paper you will be asked to write a composition based on verbal or visual output. ओके, सो लेटर ऑन आई विल डिस्कस व्हाट इज़ द वर्बल और विजुअल। यानी कि आपको वर्बल का मतलब कुछ गिवन सिचुएशन, 1-2 पॉइंट, कुछ क्लू दे के भी बताया जा सकता है, यू हैव टू राइट अबाउट दिस सिचुएशन। उसके बाद आपको कुछ विजुअल आउटपुट, विजुअल आउटपुट क्या होते हैं, आपको कुछ डायग्राम वगैरह, पोर्ट्रेट वगैरह भी दे के बताया जा सकता है कि यू हैव टू राइट अबाउट दिस टॉपिक। ओके, वट एवर बी द आउटपुट इज गिवन टू, वट एवर बी द सिचुएशन इज गिवन टू यू, ठीक है, you have to describe it, you have to give the argument to prove yourself in a very effective way. It shall be in the form of an article for a newspaper or school magazine. of course article हम लिखते हैं mostly newspaper के लिए, mostly school magazine के लिए। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वर्बल इनपुट्स क्या क्या होते हैं। भाई वर्बल इनपुट में इंक्लूड होते हैं ब्रॉड हिंट, यानी कि क्लूज दिए जाते हैं आपको कि आपने एक गिवन टॉपिक के लिए क्या क्या लिखना होता है। शॉर्ट आउटलाइन भी हो सकती है। ओनली अ सजेस्टेड बिगिनिंग, आपको सिर्फ शुरुआत में बता देंगे कि यू हैव टू स्टार्ट योर आर्टिकल विद द वर्ड्स, ठीक है, ये होते हैं आपके वर्बल, यानी कि आपको बता दिया जाता है कि इन द सिचुएशन व्हाट यू हैव टू राइट अबाउट व्हाट थिंग्स यू कैन थिंक। Next we are talking about the visual input. So visual, as the very name suggests, visual means there is something to be seen, कुछ ऐसा जो हमें दिखाया जाएगा, like the figure, diagram, chart और cartoon, हमें कोई भी चीज़ दिखा दी जाएगी, दे दी जाएगी हमारे क्वेश्चन पेपर में, then we have to write an article about that situation. The aim of inserting an input is twofold, यानी कि जो भी हो हमारा एम क्या होना चाहिए, इस इनपुट से हमें एक आउटपुट निकालना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ले डाउन अ जनरल आउटलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिकल। ऑफ कोर्स आर्टिकल को लिखने के लिए एक जनरल आउटलाइन यानी कि एक ड्राफ्ट बना लेना है। सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग क्या होती है कि कोई भी राइटिंग सेक्शन जिसमें जो लॉन्ग राइटिंग सेक्शन होता है, इट डजंट मीन जस्ट यू विल क्रैम द टॉपिक और क्रैम द सिचुएशन फ्रॉम समवेयर एल्स, बट द मेन थिंग, द मेन पॉइंट इज दैट it means that we want you to enhance your vocab, we want you to express your ideas in a very impressive way, okay, so that you can present your ideas in your own language. We want that you should mold the word in such a way that it create a meaningful sentence, यानी कि cramming नहीं करनी है। Of course ideas are in your mind, but you have to present these ideas in a very effective way, okay. So while writing an article you have to keep some of the points in your mind. First of all हमने बड़े ध्यान से, we very carefully we have to study all the hints or the points that is given इन वर्बल और विजुअल इनपुट, ठीक है। सबसे पहले हमने पॉइंट्स की तरफ देख लें कि क्या क्या दिया गया है।
ऑफ कोर्स पॉइंट्स अक्सर दिए जाते हैं, सिचुएशन आपको जो दी जाए उसके बारे में हिंट क्लू दिए जाएंगे आपको ज़रूर, ठीक है। मान लो नहीं भी दिए जाते तो तभी भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। अरेंज द हिंट्स गिवन इन ऑर्डर यू वांट टू डेवलप देम फॉर द आर्टिकल। ऑफ कोर्स हिंट दिए गए हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ आप उनको लिखेंगे। यू कैन प्रेजेंट द पॉइंट फर्स्ट about which you are feeling that you are strong, very strong for that point, ठीक है। आप सबसे पहले उसी पॉइंट के लिए लिखेंगे जिसके लिए आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। डोंट थिंक कि ये तो इजी वाला पॉइंट है एंड आई विल जस्ट राइट इट लेटर, ठीक है। तो हमने क्या करना, अच्छे से उनको अरेंज कर लेना है। थर्ड पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, यू मे हैव सम न्यू आइडियाज़ और व्यूज़ अबाउट द इश्यूज़। ऑफ कोर्स जो गिवन है उनके अलावा भी हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ और व्यूज़ होते हैं। नोट डाउन योर आइडियाज़, ऑर्गेनाइज देम प्रॉपरली। तो ऑफ कोर्स हमने वही करना जो हर बार करते हैं, जितने भी आइडियाज़ होते हैं उनको प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट योर आइडियाज़ विद द गिवन टॉपिक। हमने क्या करना होता है, फिर जितने भी हमें आइडियाज़ दिए होते हैं उनको हमने कोऑर्डिनेट करना होता है, जितने भी हिंट दिए होते हैं उनसे तालमेल बिठाना होता है। नाउ अरेंज दैम इन ए लॉजिकल ऑर्डर, और फिर उनको सीक्वेंस में लिखना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ओके। ये भी बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ में लिखना है। वन आइडिया शुड कंटेन वन पैराग्राफ। नाउ एड सब पॉइंट्स टू द मेन पॉइंट। हाँ, ये भी हो सकता है कि अबाउट द वन आइडिया you have so many points, so you can subdivide that पैराग्राफ ऑल्सो, ठीक है। उस एक ही पैराग्राफ में आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हो, ये भी ठीक है। डेवलप ईच पॉइंट इन अ सिस्टमेटिक और लॉजिकल मैनर। ऑफ कोर्स यू हैव सो मेनी आइडियाज़ एंड यू हैव टू डेवलप इन अ वेरी लॉजिकल मैनर। सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट इफ़ यू आर राइटिंग ऑन अ डिबेटेबल पॉइंट। तो कोई ठोस सबूत पेश करने होते हैं, ठीक है, बड़े ही ज़ोरदार आर्ग्यूमेंट करने होते हैं अगर हम कोई डिबेट वाले इशू पे लिख रहे होते हैं तब। हमने टॉपिक, मेन आइडिया, मेन थीम को पहले ही पार्ट में सजेस्ट कर देना है, बिल्कुल पहले जो स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ है उसी में सजेस्ट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आर्टिकल की एंडिंग होनी चाहिए कंक्लूजन के साथ। नेवर लीव एनी आर्टिकल open-ended. It means whatever be the problem we have discussed earlier, we should satisfy by giving some suggestions, by giving some solution. So in this way we learned some of the points that we have to keep in mind while writing our article. So article writing is basically a writing process. तो राइटिंग प्रोसेस होती क्या है, तो इन आर्टिकल राइटिंग इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, इसमें गहरी सोच इन्वॉल्व होती है। कलेक्टिंग आइडियाज़ का कलेक्शन होता है, उनको बाद में डेवलप करना होता है और ज़्यादा इलाबोरेट करना होता है। फिर उनको ऑर्गेनाइज करना होता है हमने रफ ड्राफ्ट में, फिर उस ड्राफ्ट को रिवाइज करना होता है और लास्ट में क्या करना है, उसको हमने एडिटिंग कर देनी, यानी कि जहाँ पे गलतियाँ थी वहाँ पे ठीक कर देना है इन अ वेरी केयरफुल एंड क्रिटिकल वे। वो कहते हैं कि थिंकिंग में सबसे पहले हमने कहा था कि इसमें थिंकिंग होती है, राइटिंग में थिंकिंग होती है, तो इसका मतलब हमने इन्वॉल्व करना होता है किसी भी सब्जेक्ट की थिंकिंग पे, थिंकिंग अबाउट द टॉपिक्स एंड द आइडियाज़ एसोसिएट विद इट, ओके। तो हमने सबसे पहले सोचना है कि क्या हमारा सब्जेक्ट है, क्या हमारा टॉपिक है, उसके लिए हमने किन किन आइडियाज़ को एसोसिएट करना होता है। उसके बाद होता है कलेक्शन, ठीक है, हमने सभी आइडियाज़ के बारे में सोच लिया है, फिर कलेक्ट करेंगे। सो वी हैव टू कलेक्ट द आइडियाज़ एंड देन विद द प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज़ मच एंड मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। It means from the gathered information from various sources we have to find out which one is the strong one and which one is going to be somewhat less strong. So next, after selection of the ideas according to their strength, we then make a rough draft of the ideas. After making the rough draft, we will revise very carefully this draft, whether there is any need for the correction or not. Just we have to be careful about that, okay. So at last we have to remove some of the phrases or sentences about which we are thinking that they are not so important for our topic. So in this way some of the features, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ये हर कंपोजिशन में, it is not only about the article writing but all the writing section,
कि कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस के बारे में आपको पहले बता दिया है कि सेंटेंस का एक दूसरे से फिट होना, लिंक होना बहुत ज़रूरी है। फ्लो का मतलब होता है सेंटेंस को भी क्या होता है, एक दूसरे से लिंक करना, फ्लो बना रहना चाहिए, एक आइडिया दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है कि सभी आइडियाज़ को टॉपिक से रिलेट करना चाहिए। देन ऑर्डर तो होना ही चाहिए, हाँ सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि वी हैव सो मैनी आइडियाज़ अबाउट द टॉपिक एंड सीक्वेंसिंग इज़ मस्ट। इंक्लूसिवनेस मीन्स unnecessary things should be removed from your writing. ओके सो हमें जो अब मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ वो दिमाग में रखने होते हैं, जैसे कि कीप एन आइडिया लिस्ट, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, उनकी लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, लेट योर आइडियाज़ इनक्यूबेट। फिर हमने क्या करना है, अपने आइडियाज़ को इनक्यूबेट करना है, यानी कि उनको सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हमने एलाबोरेट करना है। ओके जैसे कि यानी कि लंबी प्रोसेस होती है हालांकि, लेकिन फिर भी हमें कुछ समय के लिए बैठना होगा और क्या करना होगा, सोचना होगा थोड़ा सा कि हम किस बारे में क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन सपोर्ट कर सकती हैं हमें। थर्ड बोलते हैं जब हमने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया है उसके बाद हम एक रफ ड्राफ्ट बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एडिट कर देंगे। फाइनली लिखने से पहले अपने आर्टिकल को हम क्या करेंगे, एडिटिंग कर देंगे, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट शुड बी गिवन प्रेफरेंस, और जो हमारे थोड़े से लूज पॉइंट है उनको एंड में लिख देंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है क्योंकि हमने आर्टिकल राइटिंग में कम ज़्यादा समय नहीं बिताना है, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स ये बहुत अच्छी बात है ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में सो मेनी आइडियाज़ आर इन आवर माइंड, सो वी हैव टू राइट दोज आइडियाज़ इन अ वेरी सिंपलर टर्म्स। क्या करना चाहिए हमें, इसके लिए लिस्ट जो होती है उस लिस्ट के जो हमारे हेडिंग है, जो बुलेट पॉइंट है उसमें बना लेनी चाहिए। फिर बुलेट पॉइंट के ज़रिए हमें फटाफट पता चल जाएगा व्हाट वी हैव टू राइट नेक्स्ट। कीप इट शॉर्ट, सही बात है। वेन यू हैव स्टार्टेड it is given that 20 minutes, but you have to understand that you will given only 10 to 15 minutes, because in your exam you have to write in 150 to 200 word. These 50 words, sorry, these 500 words are for newspaper and magazine. This is not for your question, ठीक है। In your board exam you have to present your ideas maximum 200 words, ठीक है, in maximum 200 words. So don't take so much time, 10 minutes are enough, 10 to 15 चलो you can take for all, ठीक है। So you have to be short while writing all those things, because through the process of skimming and scanning you have to find out which one is going to be much and more informative for you, ठीक है। नंबर 6 है come back later. It means whatever be the information is with you, you should not try to keep it safe. Okay, don't develop the habit to leave the matter for the safety. It means you should not write the thing later, strong point should not write later. Okay, whatever be the your strong point, you should not save it, present it whenever it comes in your mind. Okay, so this habit is known as what, ये होती है कम बैक लेटर वाली हैबिट होती है, ठीक है। 7th कहते हैं नेवर सेव अ गुड आइडिया। सही बात है, कोई भी अच्छा कोई पॉइंट है उसको बचा के मत रखिए। कभी आप सोचो कि इजी पॉइंट है बाद में लिखेंगे, ठीक है। जो इजी बेशक है लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको एट द सेम टाइम प्रेजेंट आप कर दीजिए। तो ये सिंपल स्टेप्स लिख के आई थिंक यू विल बी एबल टू राइट अ ब्रिलियंट आर्टिकल, ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। चलिए now let us have some of the example. Okay, for the example, for the sample I will send you the PDF, okay, with a few of your exercise, ठीक है। So till then thank you very much, have a nice